Hello बच्चों, welcome to the class. This is our second lecture. I hope you all have seen the last lecture and have understood the numbers, different types of numbers. Today we will start with our chapter integers, and before starting the chapter we will again have an overview of integer. What are integers? So let's start with integers. So what are integers? See, integers are the number that starts from that are in between negative infinity to positive infinity. Means every number that lies between these negative infinity to positive infinity are known as integers. So integers can be negative numbers, integer can be 0, and integers can be a positive number. So all these things are integer. Why do we need integers? The next question is, why do we need integers? See, I told you what are natural number and whole numbers. See, natural number and whole number only cover 0 and positive numbers, correct? Natural number and whole number only cover positive number. Natural number only cover positive number. Whole number includes 0 to that. But then why then to represent negative numbers? Like to represent the negative numbers, we use integers. There were no way to show a negative number. Like -3 is not a natural number and not a whole number, it's an integer. Okay, understood? So like to show the negative numbers we need to use integers. So let's read a bit of what bit and we will start. Let me remove all this. Okay, so this in today's class we will learn about some these things and some properties. Okay, we will have an overview of property and we will learn what concept of negative numbers. So concept of negative numbers. Why do we need negative numbers? The use of negative numbers could be easily found in many of our real life situation. Means the use of negative numbers could be easily be found in many of our real life situation. मतलब जहाँ negative numbers हमारी life में कहाँ use आते हैं. We normally record the temperature 20 degree above zero as 20 degree and correspondingly we record the temperature of 20 degree below zero as -20 degree. इसका कहने का क्या मतलब है? हमारा टेम्परेचर जो हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है, हम राजस्थान में रहते हैं, हमारा यूजुअली टेम्परेचर में भी वेरी करता होगा 2 डिग्री से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गर्मी में शायद 50 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर ऐसे वेरी करता है ना. सो लेकिन कहीं कहीं जगह होती है जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, जहाँ बर्फ़ जमती है, जहाँ बर्फ़ गिरती है ना. तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है? ये तो पॉजिटिव ना. हमारे राजस्थान का या उदयपुर का जहाँ हम रहते हैं, सलूम्बर का जो भी कह लो, टेम्परेचर तो इस पॉजिटिव नंबर ने दिखा दिया कि 2 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं अभी ना, डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया. लेकिन कुछ जगह तो ऐसी भी होंगी ना कि जहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर आता होगा, जैसे कश्मीर है, शिमला है, जो इक्वेटर से बहुत दूर है, पोल के पास में है, जो रीजन पोलर रीजन के पास है, वहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है, जैसे -5, -10, -40. सो ये सब क्या होता है? ये जो टेम्परेचर्स होते हैं जो नेगेटिव जो शो करता है वो क्या होता है? जो हम मानते हैं जीरो को हम ना तो नेगेटिव मानते हैं ना पॉजिटिव मानते हैं. जीरो से ज़्यादा जो भी टेम्परेचर आता है, जो भी टेम्परेचर होता है, हम उसको पॉजिटिव टेम्परेचर मानते हैं, और जैसे जीरो से कम जो टेम्परेचर गिरता है हम उसको नेगेटिव टेम्परेचर मानते हैं. तो दैट इज वायर वी यूज नेगेटिव साइंस. तो फर्स्ट पॉइंट हमें समझ आ गया. सेकेंड पॉइंट, sea level is usually taken as zero altitude. If a bird flies 50 meter above altitude, we use 50 meter to represent how high the bird is flying above the sea level. Means क्या? जैसे सी लेवल आपने बहुत सारी अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया हो तो जो स्टेशन होता है तो वहाँ स्टेशन पे लिखा हुआ होता है अबाउ सी लेवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है. बहुत सारी जगह ये बहुत आपने शायद ध्यान दिया होगा तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा लिखा होगा अबाउ सी लेवल. अबाउ सी लेवल का मतलब क्या है? हम इस धरती पे किसी चीज़ को नापते हैं तो उसका एक रेफरेंस लेते हैं, है ना. हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, चलो हम माउंट एवरेस्ट के बारे में, आप लोगों को सबको पता है ना माउंट एवरेस्ट के बारे में.
तो माउंट एवरेस्ट कुछ नहीं, बहुत बड़ा सा ऐसा सब करके पहाड़ है। अब इस पहाड़ को नापते कैसे हैं, मतलब एक तो माउंट एवरेस्ट है, साथ में चलो हम मान के चलते हैं कि कंचनजंगा करके एक पहाड़ है, वो भी है कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। ये मान लो ये है माउंट एवरेस्ट और ये है कंचनजंगा, ठीक है, या फिर K2, कंचनजंगा K2, ठीक है। सो हम इसे नापते कैसे हैं, अब एक मिनट थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ना। अब हम इसे नापते कैसे हैं, क्या हम ऐसे कंचनजंगा के नीचे एक डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस, या फिर जैसे आपके लिए इंच टेप या मीट्रिक टेप रख के तो हम ऐसे नापेंगे नहीं ना कि कितना है हाइट। हम क्या करते हैं, इनमें से कौन सा है बड़ा देखने के लिए हम इसको नापते हैं सी लेवल के हिसाब से, कि सी लेवल क्या है भाई, सी लेवल के हिसाब से क्या है, कौन सा बड़ा है। तो हमने सी लेवल से ऐसे नाप के देखा तो हमें पता चला कि माउंट एवरेस्ट की हाइट सी लेवल पे, जो हमारा सी है, हमारा सी को हम डेटम मानते हैं कि सी, जो सी जहाँ पे सी की जो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो ये लेयर होती है सी की ना, उसको हम मानते हैं 0 पॉइंट है, मतलब यहाँ 0 मीटर है। अब उसके 1 मीटर है ऊपर जाओगे तो उसको हम पॉजिटिव 1 मीटर मानेंगे, 2 मीटर जाओगे तो हम पॉजिटिव 2 मीटर जाएंगे। तो हमारा पहाड़, फिर हम उस सी के हिसाब से हम देखते हैं पहाड़ कितना, तो उस हिसाब से हमारा माउंट एवरेस्ट ऑलमोस्ट 8,840 या फिर 50 ऐसा कुछ है ना, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को कितना मीटर है, बट ऑलमोस्ट इसके बीच में कहीं आता है। तो वो हमने किसके बीच में नापा है, हमने सी लेवल से नापा है, ठीक है। अब सबमरीन्स आप जानते होंगे जो सी के नीचे होती है, सबमरीन सी के नीचे होती है, सबको पता है ना सबमरीन। अब जैसे ये सी है, ठीक है, अब सबमरीन सी के नीचे है, अब सबमरीन सी के 50 मीटर नीचे है, तो हम उसे शो करेंगे -50 मीटर, समझे आप। और जो उसके सी के ऊपर होगी हम उसे शो करेंगे पॉजिटिव, मतलब सी हमारा कैसा काम कर रहा है, जीरो की तरह काम कर रहा है, कि जीरो के ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव और उसके नीचे जो होगा वो नेगेटिव। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो सी लेवल, हाँ मैं आपको बता रहा था ट्रेन में, तो आप स्टेशन पे देखना, स्टेशन के नाम लिखे होंगे, स्टेशन के जैसे ऐसा वो बोर्ड होता है जहाँ स्टेशन का नाम लिखा होता है, यूजुअली हर स्टेशन रेलवे स्टेशन में मिलेगा, अपने उदयपुर में भी है। जैसे यहाँ नाम लिखा होगा जैसे उदयपुर, तो और नीचे लिखा होगा जैसे कुछ मीटर लिखा होगा, जैसे 352 मीटर समुद्र, यहाँ सी लेवल या समुद्र तट से ऊपर ऐसा कुछ लिखा होगा, समुद्र तट से ऊपर, समुद्र से ऊपर ऐसा लिखा होगा, तट से नहीं समुद्र से ऊपर, ये 352 मीटर। तो समुद्र से ऊपर का मतलब है हमने पूरे अर्थ में सी को हमने रेफरेंस माना है 0, ठीक है। आप जब भी आप ट्रेन में जाओ अब एक बार नोटिस करना कि नाम लिखा होगा उसके नीचे कुछ ऐसा मीटर में कुछ लिखा हुआ होगा नीचे की तरफ, तो वो क्या बताता है कि आप जिस पॉइंट पे, आप जिस स्टेशन पे हो, उस स्टेशन का एलिवेशन, मतलब वो स्टेशन समुद्र से कितना ऊपर एलिवेटेड है। अंडरस्टूड? ओके, तो हमने ये दोनों पॉइंट देख लिया। अब हम हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। Sea level is usually taken as zero altitude. If bird flies 50 meter above zero altitude, we use 50 meter to represent how high the bird is flying above the sea level. मतलब अगर एक पक्षी है वो 50 मीटर ऊपर उड़ रहा है सी के ऊपर, तो हम कहते हैं वो 50 प्लस 50 उड़ रहा है। Corresponding, if submarine dives 50 meter, we will use -50 meter to represent its depth below the sea level. वैसे ही अगर एक सबमरीन जा रही है और वो पानी के 50 मीटर नीचे है, तो हम -50, हम क्या यूज करेंगे, -50 यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इन बिजनेस, इफ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 5 rupees above the cost price and another item 5 rupees below the cost price, then we can use +5 and -5 to record how much profit and loss the shopkeeper makes on the two transaction. मतलब अगर हम जैसे बहुत सारे लोगों की यहाँ दुकानें होगी ना, अगर आपको कभी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम पॉजिटिव में शो करते हैं, और जो हमारे को लॉस होता है उसको हम नेगेटिव में शो करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये अभी कॉस्ट प्राइस, ये सब हम चीज़ आराम से पढ़े, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही कुछ एग्जांपल है, अगला एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं हम। राम एंड मोहन वॉक्स अवे फ्रॉम द सेम प्लेस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ राम वॉक्स 200 मीटर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मोहन वॉक्स 200 मीटर हेडिंग टुवर्ड्स साउथ, देन वी कैन use 200 meter and -200 meter to record how far in each direction they walked respectively, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो एग्जांपल है वही मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब सपोज ये हमारा डायरेक्शन है ऐसा, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है।
है ना। तो अगर मैं इसे नॉर्थ मानता हूँ तो ये मेरा साउथ होता है, ये मेरा वेस्ट होता है और ये मेरा ईस्ट होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। अब वो कह रहा है कि अब एक बंदा है, ठीक है, अगर एक लड़का एक बच्चा है जो यहाँ से दो बच्चे हैं, एक यहाँ से इस तरफ जा रहा है और एक यहाँ से इस तरफ आ रहा है। अगर वो यहाँ इस तरफ 200, अगर मैंने माना कि नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव चल रहा है तो मुझे साउथ की तरफ नेगेटिव ही करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, 200 मीटर सेम है, पर चला किससे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला है, तो इसलिए मुझे वो शो करने के लिए यहाँ नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तभी हम पता लगा पाएंगे। अब जैसे सपोज मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच में कितना दूर है, तो मुझे अगर वो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब सपोज अब ये देखो, अब जैसे यही दो बच्चे होते हैं, है ना, अब यही दो बच्चे थे, अगर यही दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते, अब मानो एक 200 मीटर चला और दूसरा 180 मीटर चला, तो मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करता, 200 माइनस 180, तो मेरे को पता चल जाता कि दोनों के बीच में कितना फर्क है, तो आ गया 20 मीटर, आ गया ना। अब इन दोनों, अब ये देखो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो मैथमेटिकली मैं उस दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस तो ऐसे ही निकलेगा, 200 माइनस ऑफ 200, क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ 0 लिख दिया होता, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 200, मैंने ये कंसिडर नहीं किया कि ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था, और मैं यहाँ लिख देता कि माइनस ऑफ 200, तो मैथमेटिकली तो वो क्या दिखा रहा है कि दोनों के बीच में कोई गैप है ही नहीं। मैथमेटिकली तो वो ये दिखा रहा है कि दोनों अभी भी एक ही जगह पे 200 मीटर चलने के बाद भी अभी भी एक ही डायरेक्शन में है। तो हमें नेगेटिव नंबर से हमें क्या बताता है, हमें अभी देखो, अब ये हमें क्या बताएगा कि दोनों, ये मुझे बताएगा कि ये अभी एक नेगेटिव डायरेक्शन में चला है, ये जो है ये अभी एक नेगेटिव डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। अब देखो इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव, ये मैं अच्छे से आपको पूरा बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो अब दोनों के बीच में कितना गैप है, 400 मीटर का गैप। अब खुद देख लो आप, यहाँ दोनों के बीच में 0 था, ये यहाँ चल गया तो इसका 200 मीटर ये हो गया, ये चल गया यहाँ पे तो ये 200 मीटर ये हो गया, तो गैप कितना हो गया, 400। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि हमें नेगेटिव नंबर्स क्यों चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा सारा। तो बस इंटीजर्स के बारे में यही है। अब थोड़ा ये लास्ट और पढ़ लेते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है। यह in the above example 20, 55 and 200 are called positive numbers. The number minus 20, minus 50, minus 5, minus 200 are called negative numbers. In mathematics, number with the sign negative are called negative numbers and is read as negative or minus. ये जो माइनस लगा हुआ होता है किसी नंबर के सामने, हम उसे बोलते हैं, उन्हें नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये ऐसा कुछ कन्वेंशन नहीं है। अगर मैं कहीं पे ऐसा लिख रहा हूँ, ये एक माइनस का साइन और पीछे वीई लिख रहा हूँ, और एक प्लस का साइन और वीई लिख रहा हूँ, तो इससे मेरा मतलब नेगेटिव है। मतलब मैं बस पूरा ये लिखना नहीं चाह रहा, मैं ये नेगेटिव की जगह, क्योंकि मैं माइनस लिख के वीई का मतलब मैं उसे नेगेटिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्लस लिख के मैं वीई लिख रहा हूँ तो मैं उसे पॉजिटिव लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, मैंने यही लिखा था ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप कंफ्यूज मत होना ना, वो जस्ट एक शॉर्ट वे है उन चीज़ों का लिखने का। ओके, सो एक और मैं चीज़ आपको आज हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं अभी जल्दी से, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो मैं एक और चीज़, आई होप सो आपको इंटीजर्स के बारे में पता चल गया होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको जल्दी से समझाना चाहता हूँ वो है मेरा नंबर लाइन। ठीक है, एक बार आज समझ लो, एक बार थोड़ा सा और आप पढ़ना ना घर पे, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्या है नंबर लाइन? ठीक है, ये नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसमें अगर आप होल नंबर की नंबर लाइन बना रहे हो तो वो 0 से स्टार्ट होगी, नेचुरल नंबर की नंबर लाइन बना रहे हो तो 1 से स्टार्ट होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल में देता हूँ, यहाँ पे सारे बना ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ नंबर लाइन में कुछ डिटेल्स होती है, हमें दिखने में बहुत सिंपल लगती है, बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, अभी ये सपोज ये नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है, तो ये ऐसे स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 5 6
ऐसे करके ऐसे आगे जितना भी आगे जाएंगे जाएगी, और यहाँ एक एरो लगा होगा। इस एरो का इंपॉर्टेंस ये है, ये एरो आपको ये सिग्निफाई करता है, ये एरो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये नंबर लाइन यहाँ खत्म नहीं है, ये बस मैंने यहाँ तक लिखी है, ये नंबर लाइन और भी आगे जाती है। तो ये हमारा किसकी है, ये हमारे नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है। ठीक है, अगला है हमारे अगला हमारी नंबर लाइन किसकी है, होल नंबर की। होल नंबर की नंबर लाइन कैसे होती है, सॉरी एक मिनट, मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है, पर ये लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर क्या होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे जाएगा अप टू जहाँ पे भी। अब ये देखो होल नंबर में भी ऐसा ही है, एरो सिर्फ एक तरफ है। ये एरो आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये होल नंबर की नंबर लाइन है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। अगर ये 1 से स्टार्ट होती तो ये नेचुरल नंबर की नंबर लाइन होती। अब जो हमारे चैप्टर में जो है इंटीजर, उसकी नंबर लाइन आप जो देखोगे वो कैसी होगी, एक बहुत बड़ी स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ भी एक एरो लगा होगा और यहाँ भी एक एरो लगा होगा। ये एरो क्या सिग्निफाई करता है, ये एरो हमें सिग्निफाई करता है कि नंबर लाइन इस तरफ भी बहुत आगे है और इस तरफ भी। और इस नंबर लाइन में 0 हमेशा सेंटर में होगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4, जो आगे की तरफ जाएंगे, और इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, अब समझ आ गया आपको, ये हमारे किसकी है, ये हमारे इंटीजर्स की नंबर लाइन है। तो आई होप सो अब आपको जब भी आप नंबर लाइन देखोगे तो आपको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाएगा कि वो नंबर लाइन एक्चुअली किसकी है। ये जो एरोस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि दिखने में अच्छे के लिए हम बनाते हैं, नहीं, ये एरो कुछ सिग्निफाई करते हैं, है ना। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या है। देखो ये एक नंबर लाइन है, इन नंबर लाइन की ये जो लाइन्स होती है स्ट्रेट होती है, जिसमें नंबर्स के डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अब ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक, कुछ ये नंबर इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है, ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुई और इसके पीछे कुछ नहीं है, ये नंबर लाइन ही 1 से स्टार्ट हुई, और ये यहाँ पे एक एरो लगा है जो मुझे ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये जितना नंबर मेरे को लिखना है मैं उतनी लंबी जा सकती है नंबर लाइन। ये हमारे पेज के कन्वीनियंस के लिए हम इसे छोटा लिखते हैं, ठीक है, जितना हमें जरूरी है हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं। ये है होल नंबर की नंबर लाइन। क्यों, कैसे पता चला मेरे को ये होल नंबर की है, होल नंबर, ठीक है, ये NO डॉट का मतलब मेरा नंबर से है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ भी मेरा कंफ्यूजन हो मेरे लिखने से तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना ना, वो थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा जल्दी लिखने के लिए आई राइट लाइक दैट। ये 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है एंड इट गोes अप टू infinity. This arrow again shows that this number could go to infinity, like positive infinity, है ना। You are just seeing the positive numbers here and it would extends to positive number. The third we are looking at is the integers, integer one. The difference here is in integer we have an arrow here and an arrow here also, which represents this number line could extend up to positive infinity and here up to negative infinity. So here is the main significant difference between the number lines of the three natural, whole and integers. And rational number are usually represented in between of this. If I want to represent 1 by 2, it will be represented somewhere here. If I will have to represent 1 and 1 by 2, it will be represented somewhere here. Okay, so I hope so you have understood whatever I have taught you today. Tomorrow we will start with properties. So I would ask you to have a bit look about closure property, second commutative property, then associative, and fourth is distributive. Okay, so thanks class, I'm ending this class here. Hope so you are listening to the class and enjoying the class. If for any of your doubt, you can directly put the message in the comment box if there is a comment box opened, and if there is no comment box opened, you should directly put it on the school's WhatsApp number, the questions, doubts you are having. So thank you class, thank you for listening to me. I hope so you are learning.